students. Today we will start the relation between electric field and electric potential, right? So relation between electric field and electric potential. How these two physical quantities like electric field and electric potential are related, we are going to just establish a relation between them. So first of all, we suppose a point charge. Let Q be a point charge and its electric field, the electric field lines due to a point charge are radially outward if it is positive and radially inward if it is negative. Suppose we just take one electric field line to represent its electric field. This is electric field E vector due to the point charge Q, right? Now we suppose two points along this line. Suppose A is the point 1 and another point that is B, and distance between these 2 points we suppose a small distance, that is dr, right? It is, if suppose we place a charge, test charge Q naught at point D, then we write Q naught here at point B. If we move the charge, test charge Q naught from A to B against this electric field, we have to do some work, right? It is, and the small amount of work done is given by, first of all, we write the force acting on the charge Q naught, right? It is, what is the force? Electric field is equal to force vector upon test charge Q naught. Therefore, F is equal to Q naught E. This is the force acting on the charge Q naught, and its direction is along the direction of electric field. If Q naught is positive, its direction will be along the direction of electric field. If it is negative, then the direction of force will be opposite to the direction of electric field, right? It is, now we write force is equal to Q naught E and its direction is in the direction of electric field. Next, now the amount of work done in moving the charge Q naught from B to A. We have supposed these 2 points A and B are very close to each other, so that the electric field between these 2 points A and B will be constant or will be uniform, right? It is, the electric field between A and B will be taken to be uniform because these 2 points are very close to each other, right? It is, now the work done
dW, a small amount of work done in moving the charge Q0 from B to A. That is equal to, work done is equal to force dot displacement. Force is F and displacement is dr. See, the direction of force and the displacement, they are opposite, because force on this charge will be along electric field. This is the force, and we are moving the charge, test charge Q0 from B to A. Therefore, direction of this displacement dr and the force are opposite. Therefore, the angle between them will be how much? We write 180 degree. First of all, put the value of F, that is Q0 E. Q0 E dot dr. Right? Again, you can see electric field in the right direction and displacement in the left direction. Again, angle will be 180 degree. Then you write A dot B is equal to AB cos theta. Now, in the place of theta, we write 180 degree. See here. So, Q0 E dr cos 180 degree. Cos 180 degree is equal to minus 1. Therefore, we write minus Q0 E dr. This is the small amount of work done in moving the test charge Q0 from point B to A. Right, it is? Or we can write, means dW is equal to this much, or we write here dW divided by Q0 is equal to minus E dr. And by definition of potential difference or potential, the amount of work done, the potential at a point P in the electric field of some charge Q is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Means work done divided by charge. That gives you potential difference. Then we write dW upon Q0. This becomes equal to potential difference, means dV. Right? Therefore, in place of dW by Q0, we write dV. Therefore, we get dV is equal to minus E dr. Right? Or from this relation, we can write E is equal to minus dV by dr. See here, dV by dr, this is called potential gradient. And just before the potential gradient, we have put a negative sign. Right, it is? This means electric field at a point is equal to negative of potential gradient. Right, it is? Electric field is equal to negative of potential gradient. This is electric field. You can see, you will write an electric field is equal to negative of potential gradient is equal to minus sign, and here write we potential gradient. Potential gradient. Right? Now its application, this means that in the direction of electric field, potential decreases. What does it mean? This means that the potential decreases in the direction of electric field. Means if we move from one point to another in the direction of electric field, potential drops or potential decreases. Suppose an example, just we put here an example. Suppose this is an electric field line. Suppose we have taken
three parallel lines showing the direction of electric field. This is the direction of electric field, and we have taken point A, one point, another point suppose B, and another point suppose C. Just we have taken 3 points in the electric field. Then what will be the potential at A, B and C? We can write, see here, in the direction of electric field, suppose point B is right of A and point C is right of B. Therefore, potential at point A will be maximum, and at point C potential will be minimum, because in the direction means as we move in the direction of electric field from one point to another, then potential decreases, right? Therefore, potential at point A is maximum and that at C is minimum, right? It is. Still, it is not the last. Again, we expand it. ठीक है? अब हम यहां से देखते हैं बेटा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कैसे लिखते हैं. ठीक है? नाउ जस्ट वी इंट्रोड्यूस अ वेक्टर ऑपरेटर, दैट इज डेल ऑपरेटर. ठीक है? अगर आपने मैथ्स में नहीं पढ़ा हो तो आप फिजिक्स में थोड़ा सा जान लीजिए. ठीक है ना? आप यहां तक भी ला करके छोड़ सकते हैं. ठीक है ना? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप यहां भी एंड कर सकते हैं. ठीक है ना? लेकिन और कुछ और जानकारी ले लीजिए इसके बारे में. तो मैं बताता हूं. सबसे पहली बात, अगर हम डेल ऑपरेटर अगर इंट्रोड्यूस करें, ठीक है ना, तो ये डेल ऑपरेटर ट्रायंगल की तरह उल्टा हमने यहां पे इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर और वेक्टर ऑपरेटर. ये वेक्टर होता है और इसकी वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ दिस डेल ऑपरेटर मींस वेक्टर ऑपरेटर इज इक्वल टू, ये वेक्टर है तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, इसको पढ़ते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड. ठीक है ना? तो ये वेक्टर ऑपरेटर की वैल्यू होती है. तो अब हम लिख सकते हैं यहां पे, अब इस इक्वेशन को लिखना है. तो E इज इक्वल टू ई वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में मैं लिखना, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन, तो माइनस साइन हो गया. ठीक है? यहां पे डी अपॉन डी आर है ना, हम लिखेंगे डेल ऑपरेटर और ये भी है तो यहां पे हमने भी कर दिया. ठीक है? अब इसकी वैल्यू लिखते हैं. अगर इसको मैं एक्सप्रेस करूं, पहले इसमें लिखता हूं, माइनस साइन लिख दिया हमने और हमारे पास है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड and this is v. This you can write minus, multiply करते हूं, I cap del v upon del x minus j cap del v upon del y minus k cap del v upon del z. राइट? क्लियर? अब जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड को है ना, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स वी कैन राइट. अगर इसका कंपोनेंट है एक्स वाई जेड एक्सिस में, है ना, रेस्पेक्टिवली ई एक्स ई वाई ई जेड, तो हम क्या लिखेंगे इसको, आई कैप, ठीक है ना, ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड. तो ई की जगह लिख दिया हमने और राइट साइड ये है, इसे भी लिखेंगे माइनस आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड. अब हम कंपेयर करें. देखिए
यहाँ I है, इसका कोफिशिएंट EX है, और यहाँ I का कोफिशिएंट कितना है, माइनस dV by dx है. Therefore we can write EX is equal to minus del V upon del X. ठीक है. EY is equal to minus del V upon del Y, and EZ is equal to minus del V upon del Z. ठीक है ना, ये हो गया हमारा. तो आप चाहे तो यहां पे एंड कर सकते हैं या यहां पे एंड करिए. ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो यहां तक एक्सपेंड करिए. ये याद रखे रहिए, ये आपको काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इज इट क्लियर? ओके, नाउ we will start one more topic, equipotential surface. Equipotential surfaces, what they are. If you want to just take one screenshot, you can take. Next, equipotential surface. Equipotential surface. See what it is. First of all, and before definition, I will just draw the equipotential surface due to a point charge. Suppose this is a point charge. ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इस पॉइंट चार्ज से, है ना, अगर r1 डिस्टेंस पे, है ना, कोई पॉइंट है, सपोज ये r1 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P मान लिया हमने. ठीक है ना, ये कहीं भी मान सकते हैं, इसके राइट में, इस, है ना, चार्ज के लेफ्ट में, इसके ऊपर में, इसके नीचे में, कहीं भी पॉइंट मान सकते हैं. ठीक है ना. आप क्या देखोगे, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R. यही फॉर्मूला होता है ना. तो देखिए आप यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये कहीं भी होगा, इसके अराउंड में r1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल. तो हम क्या करें, यानी आप देखोगे यहाँ पे भी वही पोटेंशियल की वैल्यू होगी. ये भी r1 डिस्टेंस पे है, ये भी r1 डिस्टेंस पे है, और ये भी r1 डिस्टेंस पे है. तो क्या करेंगे, है ना, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे, r1 डिस्टेंस पे है. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम होगा, वही वैल्यू होगी, यहाँ पे भी वही वैल्यू होगी, या यही r1 डिस्टेंस पे भी पॉइंट है तो वही वैल्यू, यहाँ पे भी आप ड्रॉ करोगे सेम वैल्यू, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें, एक हम लाइन से, लाइन क्या, आप कहिए एक कर्व के द्वारा. ठीक है ना. तो इस तरह से ये कर्व आपको आ जाएगा, इस तरह से आपको ये कर्व मिलेगा. ठीक है ना. क्लियर. ये कर्व आपको एक सर्कल मिल गया. ठीक है ना. एक सर्कल इस तरह से, हालांकि 3 डायमेंशन में आप जाओगे तो ये स्फीयर हो जाएगा. 2 डायमेंशन में तो ये तो सर्कल की तरह दिख रहा है, बट इन 3 डायमेंशंस इट विल बी अ स्फीयर. ठीक है ना. इसी तरह अगर हमने कोई दूसरा पॉइंट में ले लिया, है ना, P' हमने कर दिया या P1 कर दिया, तो ये डिस्टेंस जो हो गया ना, इस चार्ज से डिस्टेंस ये हो गया, इसको हमने R2 कह दिया, जो कि R1 से बड़ा है. ठीक है ना. इसी तरह ये पॉइंट P1 जो हमने लिया है ना, यही इसके सराउंडिंग में बहुत सारे पॉइंट्स ले लें जो कि R2 डिस्टेंस पे है, तो वहां भी क्या होगा, है ना, पोटेंशियल सेम होगा. इसी तरह सारे पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें, देखिए आप ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो अनदर स्फीयर आपको मिलेगा. ठीक है ना. दिस विल बी अनदर स्फीयर,
एंड सो ऑन। इस तरह से आप r3 डिस्टेंस है ना, तो आप क्या कहोगे, ये सारे स्फीयर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना, और जिनका सेंटर कहां पे है, इस चार्ज q पे है। मीन्स है ना, q विल बी द है ना सेंटर ऑफ ऑल द स्फीयर्स, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, है ना, द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी ये सब इक्विपोटेंशियल, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स विथ देयर सेंटर्स एट द चार्ज, राइट इट इज, यानी एक कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। बात समझ में आई ना। और नेक्स्ट बात हम यहां पे देखते हैं कि अब देखो ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव है, तो एक है ना फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। ये फील्ड लाइंस होते हैं ना, ये फील्ड लाइंस, इस तरह से आप ये फील्ड लाइंस देखो, आप रेडियली आउटवर्ड दिखाते हैं ना, इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो अब जरा देखो, ये सब रेडियस के अलोंग है, और आप जानते हो सरफेस पे क्या होता है, रेडियस परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो एक रिलेशन भी हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट इज। तो ये बात याद रखनी है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट। इक्वी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि हमने ये सरफेस लिया, इक्विपोटेंशियल है, मतलब इसके हर पॉइंट पे, इस स्फीयर के यानी इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की सेम वैल्यू है ना। तो डेफिनेशन हमारा क्लियर हो गया। द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम, और यू कैन से है ना, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच the potential has the same value, right it is। तो ये डेफिनेशन हो गया। The equipotential surface is a surface at every point of which the electric potential has the same value, ठीक है, ओके। नाउ अभी तो हमने देखा ये पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हमारे कैसे हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है ना। इसी तरह डाइपोल के कारण है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से होंगे, इसको भी हम देखते हैं। तो डाइपोल हमारा क्या होता है, आप जानते हैं, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ले लिया क्यू, और यहां पे हमने निगेटिव चार्ज ले लिया माइनस क्यू, ठीक है। तो ये हमारा एक डाइपोल को, कोई जरूरी नहीं है आप यहां माइनस रखो, यहां प्लस रखो, या हमने यहां प्लस रख दिया, यहां माइनस रख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइपोल है, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए, अगर इसके कारण सिंपल हम देखें, सबसे पहले ये दोनों चार्ज है अपोजिट नेचर का है, अनलाइक चार्जेस है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप जानते हो है ना, अनलाइक चार्जेस है ना अट्रैक्ट ईच अदर। तो सपोज करो इसके कारण अगर हमारा, जैसे मान लो एक सिंपल सा मैं ड्रॉ करता हूं, ये प्लस क्यू के कारण है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये माइनस क्यू के कारण है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, मतलब ये थोड़े इधर मूव कर जाएंगे, ये थोड़ा इधर मूव कर जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपको आप देखोगे क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस इधर इस इस तरह से, मतलब ये थोड़े से नैरो होंगे इधर की तरफ और इधर वाइडर हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर ए पेयर ऑफ है ना सिमिलर चार्ज है, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो इस तरह से प्लस क्यू है हमारा, यहां पे भी प्लस क्यू है, तो अब जरा देखो ये दूसरे को रिपेल करेंगे, बात समझ में आ गई, यानी इधर बढ़ेंगे, तो क्या होगा है ना, जो इनके एक दूसरे को फेस करने वाले ये हो जाएंगे वाइडर, ठीक है ना, और इधर हो जाएगा नैरो, देखो आप इस तरह से,
इस तरह से जस्ट अपोजिट इसके हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो हम इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दिखा सकते हैं। आप एक बार एनसीईआरटी बुक देखना, ठीक है ना, ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है कि, है ना, कोई अगर हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से होंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो है ना, हम सबसे पहली बात कि क्या लेते हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस हमने ले लिया, सपोज करो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब जानते हैं फील्ड लाइंस है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वही ना इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है ना। तो हमने लाइन एक ड्रॉ कर दिया, आप यहीं पे ला करके इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है, या ऐसे सरफेस आप ड्रॉ कर दो इस तरह से। ऐसे ये सरफेसेज हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। And this is all about the equipotential surface. First of all, once आपको डेफिनेशन करना है, नेक्स्ट आपको वेरियस चार्जेस के कारण या वेरियस जो हमारी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, पॉइंट चार्ज है तो कैसा होगा, ठीक है ना, अगर डाइपोल है उसके कारण कैसा होगा, या पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कैसे होंगे। तो ये हम पिक्टोरियली, है ना, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, इफ एनी प्रॉब्लम कम्स देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है ना, ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, राइट, इट इज ओके। थैंक यू।